Good morning everybody. Today we are going to explain some numerical sum of chapter number 12 electricity. Okay, before starting the numerical sum, we take a look on the sum basic formulas. Number 1, Q is equal to IT. Here Q represent electric charge, I represent electric current and T time taken. Second, V is equal to W upon Q. Here V is equal to potential difference, W means work done, Q means charge. So W is equal to VQ. Fourth number, V is equal to IR. V means potential difference, I electric current and R means resistance. This formula is also known as Ohm's law. Next, when our resistor is connected in series, then we use R is equal to R1 plus R2 plus R3. Next, if our three resistors are connected in parallel and we should find the equivalent resistance, then we use 1 upon R is equal to 1 upon R1 plus 1 upon R2 plus 1 upon R3. 7 number, H is equal to VIT. H means heat energy, V potential difference, I electric current and T time taken. Number 8, H we also have the another formula. H is equal to I square RT. I means electric current, R resistance and T means time taken. Now we start our numerical sum. Firstly, I explain some examples of your textbook. First, example number 12.2. How much work is done in moving a charge of 2 coulomb across 2 points having a potential difference 12 volt. आपको क्या फाइंड आउट करना है? वर्क डन. गिवन क्या है वो भी देख लो. 2 कॉलम, इट मीन्स इट इज Q. Q इज इक्वल टू गिवन 2 कॉलम एंड पोटेंशियल डिफरेंस इट मीन्स V इज इक्वल टू 12 वोल्ट. तो अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा W इज इक्वल टू VQ. So we put the value here. 12 into column means 2. So 12 2 ja 24 and SI unit of work done is joule. So W is equal to 24 joule. Next example is 12.4. The potential difference between the terminals of an electric heater is 60 volt when it draw a current of 4 ampere from the source. अगर एक इलेक्ट्रिक करंट का 60 वोल्ट होता है, इट मीन्स उसमें से इलेक्ट्रिक करंट 4 एम्पियर पास हो रहा है. व्हाट करंट विल बी द हीटर ड्रॉ इफ द पोटेंशियल डिफरेंस इज इंक्रीज टू 120 वोल्टेज. ठीक है, अगर 60 वोल्टेज है तो 4 एम्पियर इलेक्ट्रिक करंट सोर्स से पास होता है. अगर उसका पोटेंशियल इंक्रीज करके 120 वोल्ट कर दें तो कितना इलेक्ट्रिक करंट पास होगा? तो फर्स्टली वी फाइंड द वैल्यू ऑफ आर, कि उस इलेक्ट्रिक सोर्स में रेजिस्टेंस कितना है. तो वी नो द फॉर्मूला V इज इक्वल टू IR. ओके, नाउ पुट आउट द वैल्यू. V मीन्स 60 वोल्टेज, इलेक्ट्रिक करंट 4 and resistance you should find. So R is equal to become 60 upon 4. That's one the 15. And SI unit of resistance is ohm. Okay. Now we find out the electric current. V is equal to IR. This one the Ohm's law. Now put out the value V. अब आपका V कितना होना चाहिए जैसे? नेक्स्ट टाइम आपको लेना है 120 वोल्ट. तो यहाँ पे पुट आउट करोगे 120. इलेक्ट्रिक करंट आपको फाइंड आउट करना है और रेजिस्टेंस देखो हमने फाइंड आउट करके रखा है. हाउ मच? 15 ओम. तो यहाँ पे पुट आउट कीजिए 50. सो I इज इक्वल टू 120 डिवाइडेड बाई 15. कट आउट कीजिए. 15 8 जा 120. So our answer is 8 ampere. Now next we discuss on some exercise questions. First number is question number 6 from your textbook exercise. A copper wire has diameter 0.5 millimeter and resistivity of 1.6 into 10 raised to minus 8 ohm meter. What will be the length of this wire to make its resistance 10 ohm? ओके, आपको लेंथ ऑफ वायर फाइंड आउट करना है. गिवन दिया है D 0.5 मिलीमीटर, मगर ऐसा यूनिट होता है मीटर. सो वी कन्वर्ट इनटू मीटर. 0.5 10 रेज टू माइनस 3 मीटर और इसको हम लिख सकते हैं 5 इंटू 10 रेज टू माइनस 4 मीटर. ये डेसिमल हमने रिमूव किया.
सो 1 पावर आपका इंक्रीज होगा. सो 5 इंटू 10⁻⁻4 मीटर. रेजिस्टिविटी का सिंबल होता है रो एंड दैट्स वन गिवन 1.6 इंटू 10⁻8 ओम मीटर. और रेजिस्टेंस दिया है आपका 10 ओम. आपको लेंथ ऑफ वायर निकालना है. वी ऑल नो दैट R इज इक्वल टू रो L अपॉन A. सो लेंथ ऑफ वायर का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? RA अपॉन रो. नाउ पुट आउट द वैल्यू ऑफ R, बट A मीन्स हियर A आपको एरिया ऑफ सर्कल यूज करना है. एरिया ऑफ सर्कल मीन्स पाई R स्क्वायर अपॉन रो. बट हमारे पास R नहीं, डायामीटर है. सो इन प्लेस ऑफ दैट वी यूज पाई. R मीन्स डायामीटर का हाफ. सो वी पुट आउट हेयर D स्क्वायर अपॉन हाफ मतलब 2 का स्क्वायर 4 अपॉन रो. अब इसमें सारे वैल्यू पुट आउट कर दो. रेजिस्टेंस आपका गिवन आउट है 10. पाई का वैल्यू 3.14. ओके. डी आपका था जैसी है. डी हमने क्या निकाला? 5 इंटू 10⁻⁻4. तो 5 इंटू 10⁻⁻4 का स्क्वायर अपॉन रो. रो वैल्यू कितना गिवन आउट है जैसी? दिस वन योर रो 1.6 इंटू 10⁻8. ओके. सो यह पुट -8 and 4 दिस वन. अब इसको सॉल्व करो. 3.14 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डेसिमल एक डिजिट पैसे चला जाएगा. 5 का स्क्वायर करोगे तो 25. 10⁻⁻4 का स्क्वायर करोगे तो आएगा -8. ओके. और 1.6 एंड 4 को मल्टीप्लाई कीजिए. देन वी विल गेट 6.4 इंटू 10⁻8. 10⁻8 कट आउट. अब इसको मल्टीप्लाई करो. देन वी गॉट 785 डिवाइडेड बाई 6.4. 6.4 से डिवाइड करेंगे तब हमारा आएगा 122.7 मीटर. दिस वन द लेंथ ऑफ वायर. सेकेंड क्वेश्चन क्या है वो देखो. हाउ मच डज द रेजिस्टेंस चेंज? रेजिस्टेंस कितना चेंज होगा अगर हम डायामीटर को डबल कर दें? अगर डायामीटर डबल होता है रेजिस्टेंस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? तो अभी हमने फॉर्मूला देखो यहाँ स्टार्ट किया. R डायरेक्टली नहीं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ वायर. सो R एरिया मीन्स पाई R स्क्वायर. बट हमसे कंडीशन बोला है कि डायामीटर डबल होगा तो कितना होगा? तो सो R 1 अपॉन पाई और R की जगह पे हम डालते हैं D स्क्वायर अपॉन 4. ओके. अब आपको D को क्या कर देना है? डबल. तो आपका बनेगा 1 अपॉन ये कितना हो गया? 2D का डबल कीजिए तो 2D आपका बन जाएगा 2D यानी R बन जाएगा 4R. तो आपका यहाँ पे कट आउट होगा पाई इंटू D को डबल करो तो 2D यानी 4D स्क्वायर. ओके. 4D स्क्वायर अपॉन 4. D का हमने डबल कर दिया. क्लियर? तो ये आपका गया. सो R आपका ओके. So R become how much? Just see here. Here I show you. R becomes directly proportional to 1 upon pi D square. Okay. बट हमारा रियल फॉर्मूला में नीचे कितना आना चाहिए? 4 पाई D स्क्वायर. अब आपका 4 कट आउट हो गया तो इट बिकम्स R इज इक्वल टू. अगेन ऐसे यहाँ पे फॉर्मूला देखो. आपका जो रेजिस्टेंस होता है वो 4 पाई D स्क्वायर होना चाहिए. बट हमारे पास केवल 1 पाई D स्क्वायर हुआ. इट मीन्स आपको यहाँ 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. तो कितने का चेंजेस आया आपके पास? 1/4. ओके. तो आप बोलोगे जब आपका डायामीटर डबल होगा, डायामीटर डबल, तो रेजिस्टिविटी यानी रेजिस्टेंस आपका 1/4 हो जाएगा. रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1/4. ओके. और जब रेडियस या डायामीटर हाफ करोगे, ठीक है, डबल हुआ तो 1/4 और डायामीटर अगर हाफ होगा तब आपका रेजिस्टेंस 4th टाइम इंक्रीज होगा. क्योंकि डायामीटर का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है R और वो भी स्क्वायर फॉर्म में.
इसलिए जब आपका डायामीटर डबल हुआ तो उसका स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा 4। तो हम बोलेंगे रेजिस्टेंस 1/4 डिक्रीज हुआ। और जब आपका डायामीटर हाफ होगा यानी डायामीटर डिक्रीज हुआ तो रेजिस्टेंस 4th टाइम इंक्रीज होगा। ओके। Now next question is question number 11. So how you would connect 3 resistors, each of resistance 6 ohm, so that the combination has a resistor of first number 9 ohm and second is 4 ohm. It means आपके पास 3 रजिस्टर्स है 6 ohm, 6 ohm, 6 ohm. आपको तीनों रजिस्टर को ऐसे अरेंज करना है कि फर्स्ट कंडीशन में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 9 ohm हो एंड सेकेंड टाइम ऐसा अरेंजमेंट करो कि उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 4 ओम हो। तो पहले हम फर्स्ट सॉल्व करते हैं। इमेजिन कीजिए कि आपका 2 रजिस्टर यानी स्टार्टिंग के 2 रजिस्टर पैरेलल कनेक्शन में होगा। ओके। और जो थर्ड वन रजिस्टर है वो सीरीज में, ये 6 ओम 6 ओम और ये 6, दिस वन योर पॉइंट ए एंड बी, यानी स्टार्टिंग का 2 रजिस्टर पैरेलल में होगा। तो 2 रजिस्टर अगर पैरेलल कनेक्शन में है तो हम फॉर्मूला क्या यूज करेंगे 1/R1 प्लस 1/R2। इट मीन्स 1/6 प्लस 1/6, you take the LCM 6 and 1 plus 1 2, so cut out 1/3. It means equivalent resistance when it is connected in parallel is 3 ohm. Okay, 1/3 आया, that's one the 1/RP, और RP अकेला पूछे then you say 3 ohm. इन दोनों का कॉम्बिनेशन करेंगे तो हमारा आंसर आया 3 ओम। अब 3 और 6 ये दोनों आपके सीरीज में कनेक्टेड है, तब आपका फाइनल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सीरीज में निकलेगा 3 + 6, इट मीन्स 9 ओम, और हमको फाइनल रेजिस्टेंस लाना था 9 ओम। तो हमने कैसे अरेंज किया, स्टार्टिंग के 2 रजिस्टर आपको पैरेलल कनेक्ट करना है और सेकेंड वन यानी थर्ड रजिस्टर सीरीज में कनेक्ट होना है। ओके। अब सेकेंड सिचुएशन में आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 4 ओम आना चाहिए। सेम रजिस्टर है 6 ओम 6 ओम एंड 6 ओम। इस बार क्या करेंगे, तो 2 रेजिस्टेंस हम पहले सीरीज में कनेक्ट करेंगे और जो थर्ड वन है उसको पैरेलल में कनेक्ट करेंगे। दिस टाइम अपोजिट वर्क करेंगे। ओके। सभी का रजिस्टर वैल्यू सेम है 6 6 6, बट इस बार हम पहले सीरीज का फाइंड आउट करेंगे। सीरीज कनेक्शन में सिंपल प्लस करते हैं, इट मीन्स 6 + 6 हाउ मच 12 ओम। इन दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो गया 12। अब ये 12 और ये 6 आप फिगर देखो कैसा दिख रहा है, पैरेलल। तो लास्ट हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पैरेलल कनेक्शन होगा एंड पैरेलल में यूज करते हैं 1/, सो 1/RP = 1/12 प्लस 1/6। एलसीएम लो, 6 and 12 का एलसीएम 12 एंड 1 + 6 2 = 12, इट मीन्स 3/12। कट आउट करेंगे तो 1/4। देयरफॉर वी से दैट RP = 4 ओम। और ये हमको फाइंड आउट करना था कि लास्टली हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 4 ओम आना चाहिए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इज 12. Several electric bulbs designed to be used on a 220 volt electric supply line are rated 10 watt. How many lamps can be connected in a parallel with each other across 2 wire of 220 voltage line if the maximum allowable current is 5 ampere? ओके। आपको सेवरल इलेक्ट्रिक बल्ब कनेक्ट करना है और वोल्टेज सप्लाई है 220 एंड हर का रेटेड आपका है, ईच एंड एवरी बल्ब का रेटेड है 10 वॉट। 10 वॉट मतलब पावर आपका गिवन आउट है। क्लियर। आपको नंबर ऑफ लैम्प्स यानी बल्ब कितने कनेक्ट कर सकते हो अगर 2 वायर के बीच में 220 वोल्टेज हो और 5 एम्पेयर इलेक्ट्रिक करंट। तो फर्स्टली कि ये जो इलेक्ट्रिक डिजाइन बनाया गया है जिसमें आपका 10 वॉट पावर फ्लो कर रहा है उसका रेजिस्टेंस कितना है ये हमको फाइंड आउट करना पड़ेगा। ओके। तो पावर का फॉर्मूला होता है VI, मगर हमको तो रेजिस्टेंस निकालना है, सो वी यूज V और I की जगह पे लिखेंगे हम VR अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। सो P = V² R एंड वी से दैट R = V² P। अब R फाइंड आउट कर लेते हैं। R V², इट मीन्स 220 का स्क्वायर और पावर दिया हुआ है आपका 10। अब 220 स्क्वायर मीन्स 220 × 220 / 10। ओके।
20 का स्क्वायर होता है आपका 484 और एक जीरो एक्स्ट्रा लगाइए, दैट्स वन योर रेजिस्टेंस। ठीक है, 10 वॉट अगर पावर सप्लाई कर रहे हैं तो उस वायर का रेजिस्टेंस होगा आपका 4840 ओम। ये आपके पूरा इलेक्ट्रिक बल्ब का जो डिजाइन किया हुआ है उस वायर का रेजिस्टेंस है। फिर आप जो बल्ब कनेक्ट कर रहे हो उसका अलग से दिया है, उसका भी 220 वोल्टेज है, मगर इलेक्ट्रिक करंट उसमें हर बल्ब में से कितने पास होने चाहिए, 5 एम्पीयर। अब इसका आप रेजिस्टेंस अलग निकालो। ठीक, इसका अलग नाम दीजिए आर टोटल या R1 एनीथिंग यू गिवन, क्योंकि ये रेजिस्टेंस आपके ईच बल्ब से क्रॉस होकर जाएगा। और ये जो ऊपर हमने रेजिस्टेंस निकाला वो आपके स्टार्टिंग इलेक्ट्रिकल डिजाइन में जो आपने पूरे बल्ब लगाए हैं उस वायर का रेजिस्टेंस है। तो R का फॉर्मूला होता है V अपॉन I। सो V है 220 और I मीन्स 5, सो यू गॉट 44 ओम। ओके, अब हमारे पास R जो सभी स्टार्टिंग में आपका रेजिस्टेंस में जा रहा है, हमने कितना फाइंड आउट किया, देखो 4840 ओम, 4840 ओम। एंड R टोटल हमने नाम दिया, R टोटल मीन्स जो सभी टोटल बल्ब के पास जा रहा है, दैट्स 1 आवर 44 है। एंड सपोज कर लो n का मतलब हुआ नंबर ऑफ बल्ब्स या लैंप लीजिए एनीथिंग। अब इसका फॉर्मूला क्या होगा, तो दिस आर कनेक्टेड इन पैरेलल। ठीक है, पैरेलल में कनेक्टेड है इसलिए हम R टोटल यानी ईच को R अपॉन n से फाइंड आउट करेंगे। अगर सीरीज में कनेक्टेड होता तो n इंटू R लिखते हैं। सो R टोटल वैल्यू पुट आउट करो, दिस वन योर 44 एंड स्टार्टिंग रेजिस्टेंस है आपका 4840 अपॉन n। n यहाँ नंबर ऑफ बॉल है, सो n को यहाँ रखेंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन एंड 44 को नीचे ले आएंगे। नाउ कट आउट करो, कट कीजिए, सपोज कीजिए 2 से कट करते हैं 22, ये बनेगा 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 एंड 0। ओके, अब 22 से डायरेक्ट कट मार दो, 21 22 1 जा 22, फिर 2 बचा, 22 1 जा 22 और 1 0, यानी हम कितने बल्ब कनेक्ट कर सकते हैं, 110 बल्ब। ओके, now next question is question number 13. A hot plate of an electric oven connected to a 220 volt line has two resistance coil A and B, each of 24 ohm resistance, which may be used separately in series or in parallel. What are the current in three cases? ठीक है, आपके कॉइल A और कॉइल B दोनों का रेजिस्टेंस सेम है, कितना, 24 है। इट मीन्स RA रेजिस्टेंस फॉर कॉइल A एंड RB रेजिस्टेंस फॉर कॉइल B, दोनों का वैल्यू 24 ओम। ओके, और आपका वोल्टेज दिया है 220 V। आपको निकालना है इलेक्ट्रिक करंट, क्लियर। मगर 3 सिचुएशन है, अगर RA और RB दोनों अलग अलग सेपरेटली वर्क करते हो तो टोटल इलेक्ट्रिक करंट कितना आएगा, अगर दोनों ओवन सीरीज में कनेक्ट है तो कितना आएगा, और पैरेलल में। तो केस नंबर 1, अगर आपका दोनों रेजिस्टेंस सेपरेटली कनेक्टेड है तो कितना आएगा, तो I इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है V अपॉन R। तो हम पहले कॉइल A के लिए निकालते हैं, सो V अपॉन RA। ओके, V हमारा है 220, R है 24, तो 220 को 24 से डिवाइड करेंगे, देन वी गेट 9.166 एम्पियर। एंड RB ये आपका कॉइल A के लिए हुआ। ओके, कॉइल B के लिए भी सेम होगा, V अपॉन RB, सेम थिंग्स। ओके, V आपका इसके लिए भी 220 है, सेम है 24 है, और हम डिवाइड करेंगे, देन वी गॉट सेम आंसर। यानी अगर दोनों कॉइल सेपरेटली अगर अलग अलग यूज किया जाए तो दोनों में इलेक्ट्रिक करंट आएगा 9.166 एम्पियर। नाउ सेकेंड सिचुएशन, इफ दे आर कनेक्टेड इन सीरीज, अगर वो सीरीज में कनेक्टेड हो तो तब आपके RS निकालेंगे, क्लियर। और इसमें RA और RB को प्लस करना पड़ेगा क्योंकि दोनों रजिस्टर आपके सीरीज में कनेक्ट हैं। तो RA और RB दोनों हमारा है 24, सो आंसर इज 48 ओम। अब इलेक्ट्रिक करंट यूज करेंगे I यानी IS, जब आपका दोनों ओवन सीरीज में कनेक्टेड हो तो फॉर्मूला बनेगा V अपॉन R, इट मीन्स RS। V हमारा फिक्स है 220 और इस बार RS यानी 48 से डिवाइड करेंगे।
फॉर हमारा आंसर आएगा 4.58 एम्पियर। नाउ थर्ड केस, अगर दोनों रजिस्टर आपका पैरेलल में कनेक्टेड हो, पैरेलल में कनेक्टेड होगा तो हमको निकालना पड़ेगा 1/RP इज इक्वल टू 1/RA प्लस 1/RB। ओके, इट मीन्स 1/24 प्लस 1/24, एलसीएम लेंगे 24 ऊपर हो जाएगा 1 प्लस 1 2, सो 2 12 जा, इट मीन्स आरपी हमारा आएगा 12 ओम। क्लियर? तो अब हम आई निकालेंगे इलेक्ट्रिक करेंट, बट दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल, सो रिटन हियर आईपी V/RP। वोल्टेज सेम है 220, रेजिस्टेंस हमने निकाला 12, डिवाइड करेंगे देन वी विल गेट 18.33 एम्पियर। इन दिस वे we easily find out the value of electric current. Resistors are connected in series or parallel. Next question is question number 15. Two lamps, one rated 100 watt at 220 volt and second bulb is 60 watt at 220 volt are connected in a parallel to electric main supply. What current is drawn from the line if the supply voltage is 220 volt? ठीक है, आपके पास दो बल्ब है, दो लैंप है, एक 100 वाट का है, एक 60 वाट का। क्लियर? अब इन दोनों बल्ब को आपको पैरेलल में कनेक्ट करना है, वोल्टेज 220 मेंटेन करना है, और बताओ कि दोनों बल्ब में कितना इलेक्ट्रिक करंट पास होगा। तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक करंट निकालने से पहले हमको निकालना पड़ेगा रेजिस्टेंस। तो फॉर बल्ब 1 तो हम उसको सपोज करते हैं R1। तो R का फॉर्मूला होता है V²/P, इट मीन्स पावर। ये फर्स्ट बल्ब का है, ये फर्स्ट लिख दिया P1। V² आपका है 220, सो 220 इंटू 220 अपॉन पावर। तो फर्स्ट बल्ब का पावर कितना है 100, सो पुट आउट हेयर 100, 0 0 कट, 22 का स्क्वायर होता है आपका 484 ओम। ओके, दिस वन द रेजिस्टेंस पासिंग थ्रू द फर्स्ट लाइन। अब हमको निकालना पड़ेगा R2। इन द सेम वे V² अपॉन पावर 1 की जगह पे पावर 2 कर दो, 220 इंटू 220 अपॉन P2। हमारा पावर 2 कितना है 60। ओके, ये 0 0 कट आउट कीजिए, 22 का स्क्वायर बनेगा 484 और एक 0 रिमेनिंग एंड अपॉन 6। अब ये कट आउट नहीं होगा, इसलिए इसको हम एज इट इज रखेंगे। फिर आपका गिवन आउट है कि दोनों रेजिस्टेंस आपका पैरेलल में कनेक्ट होना चाहिए। तो पैरेलल में अगर कनेक्टेड है तो 1RP इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। सो 1/R1 हमने निकाला 484 प्लस 1/R2। R2 देखो कितना हमारा 4840 अपॉन 6, 4840 अपॉन 6। अब ये 6 यहाँ पे न्यूमरेटर में आ जाएगा, देन इट बिकम 6/4840। फिर एलसीएम ले लो 4840। ओके, इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो वी शुड हियर 10 प्लस 6, 16/4840। ये आंसर हुआ 1/RP का। सो RP एक्चुअली क्या बन जाएगा 4840 अपॉन 16 ओम। डिवाइड करोगे तो मिलेगा 302 यानी 302.5 ओम। दिस वन आवर रेजिस्टेंस व्हेन दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल। अब आपको क्या निकालना है इलेक्ट्रिक करंट। तो V इज इक्वल टू IR, सो I इज इक्वल टू बिकम VR। R हमारा पैरेलल में, सो वी शुड हियर राइट डाउन RP। वोल्टेज कितना होना चाहिए, क्वेश्चन में देखो लास्ट टाइम भी आपको कितना वोल्टेज पास करना है 220, सो वी शुड राइट हियर 220 अपॉन RP। RP आपका आया 302.5। अब ये डेसिमल को रिमूव करके ऊपर 10 पुट आउट करो, सो इट बिकम 2200 upon 3025. Now divide it, then we will get 0.7272, approximate 0.73 ohm. This one our answer. Now next question number is 16. Which uses more energy, 250 watt TV set in 1 hour or 1200 watt toaster in 10 minutes? आपके पास एक टीवी सेट है जो 250 वाट पावर यूज करता है और 1 आवर के लिए आपने
स्टार्ट रखा, और एक टोस्टर है जो 1200 वॉट पावर यूज करता है, बट आपने उसको केवल 10 मिनट्स के लिए यूज किया, तो किस में सबसे ज़्यादा एनर्जी यूज हुआ? सबसे पहले हम टीवी के लिए फाइंड आउट करेंगे। ओके, इलेक्ट्रिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिक एनर्जी का फॉर्मूला पावर, कितना पावर यूज किया और कितने टाइम तक। सो इलेक्ट्रिक एनर्जी इज इक्वल टू P इंटू टी। तो फर्स्ट का पावर है 250 टीवी के लिए, और आपने टाइम लिया 1 आवर, मगर हमको इसको सेकेंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, सो वी मल्टीप्लाई 60 इंटू 60। अब मल्टीप्लाई करो 250 60 इंटू 60, इट मीन्स 3600, 25 इंटू 36, then we 900 और 30, दिस वन इलेक्ट्रिक एनर्जी। और इलेक्ट्रिक एनर्जी का ऐसा यूनिट होता है जूल। ये अमाउंट बिग वन है, इसलिए हम इसको किलो जूल में चेंज करेंगे, तो 30 की जगह पे आएगा आपका किलो जूल। यानी टीवी सेट के लिए हम कितना एनर्जी यूज कर रहे हैं? 900 किलो जूल। अब हम देखेंगे कि टोस्टर में कितना एनर्जी यूज हो रहा है, इलेक्ट्रिक एनर्जी। सेम फॉर्मूला यूज करेंगे, इलेक्ट्रिक एनर्जी इज इक्वल टू पावर इंटू टाइम। इस बार पावर है 1200 वॉट एंड टाइम है 10 मिनट। मिनट को वापस सेकेंड में चेंज करो, सो 10 इंटू 60। सो मल्टीप्लाई दिस 3 नंबर, देन वी गॉट 72000 जूल, 720,000 जूल। अब इसके भी 1000 को चेंज करके किलो जूल में करेंगे, 720 किलो जूल। Now easily we say that which is uses more energy? TV set. Okay, TV set use more energy as compared to our toaster. Okay, now we here explain some extra questions, okay, which are important for your exam, just like a MCQ and 2 marks question. First question is, 2 ampere electric current is passed for 1 minute. कितने मिनट के लिए पास हो रहा है? 1 मिनट थ्रू अ कंडक्टिंग वायर। हाउ मच इलेक्ट्रिक चार्ज विल पास थ्रू दिस वायर? कितना इलेक्ट्रिक चार्ज पास होगा? आपका गिवन क्या क्या है? I इज इक्वल टू 2 एम्पियर। या टाइम टेकन गिवन 1 मिनट, बट टाइम का ऐसा यूनिट होता है सेकेंड, तो वी कन्वर्ट हियर 1 मिनट मीन्स 60 सेकेंड। सो Q का फॉर्मूला वी ऑल नो दैट Q is equal to I into T. Put out here value 2 into 60. It means 120 column. This one our answer. Now next question is, our 9 ohm resistance is cut into 3 equal parts and connected in parallel. Find the equivalent resistance of the connection. आपके पास एक 9 ohm का रेजिस्टेंस है जिसको आपको 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है, यानी R आपका ऑलरेडी 9 ओम है, मगर 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। इट मीन्स R1, R2 एंड R3 तीनों इक्वल होना चाहिए। 9 डिवाइडेड बाई 3, दैट्स 3 ओम। ओके, और फिर तीनों को आपको पैरेलल में कनेक्ट करना है। इट मीन्स 1 अपॉन RP इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। now put the value 1 upon 3 plus 1 upon 3 plus 1 upon 3. So we take the LCM 3 and 1 plus 1 plus 1. So 3 upon 3 cut out 1. यानी अगर आप तीनों रेजिस्टेंस को पैरेलल में कनेक्टेड करते हो तो हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा 1 ओम. ओके, question number 3. Just see this one, the figure. In the following circuit you find the value of electric current. Voltage already given here 3 volt. आपको इलेक्ट्रिक करंट फाइंड आउट करने के लिए पहले रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा. एंड हेयर 4 रजिस्टर्स आर गिवन. फर्स्टली you examine which one are connected in series or which are in parallel. सपोज कर लो यहाँ से आपने पॉइंट को रिमूव किया वायर का, तब आपका ये दोनों सेम लाइन में दिखेगा. इट मीन्स दिस 10 एंड दिस वन 10 आर कनेक्टेड इन योर सीरीज R1 एंड R2 सपोज के लीजिए. और ये रिमूव करोगे तो दिस वन लुक लाइक दिस वे. इट मीन्स R3 एंड R4 connected in series. And just find out firstly RS series connection R1 plus R2. It means 10 plus 10 आपका हो गया 20 ओम. एंड RS डैश ये भी आपका 2 सीरीज में कनेक्टेड है.
R3 plus R4. 10 plus 10 how much 20 ohm. मगर बाकी RS एंड RS डैश अगर कंबाइन कर दो इन दोनों को और इन दोनों को तो ये दोनों आपके पैरेलल कनेक्टेड है. इट मीन्स 1 अपॉन RP इज इक्वल टू 1 अपॉन RS प्लस 1 अपॉन RS डैश. इट मीन्स 1 अपॉन 20 प्लस 1 अपॉन 20. टेक द LCM 20. 1 plus 1 2. कट आउट 1 अपॉन 10. ओके, देयरफॉर RP आपका कितना हो जाएगा 10 ओम. आपको क्या निकालना था इलेक्ट्रिक करंट I का फॉर्मूला होगा V अपॉन R. इट मीन्स RP. वोल्टेज कितना गिवन आउट था जो सीन फिगर 3 वोल्ट. कैर यू पुट आउट 3 अपॉन 10. दैट मीन्स 0.3 एम्पेयर. It is important for 2 marks question. Now next one, just see the total electric current and equivalent resistance between point A and B of the following circuit. Okay, suppose this one point A and this one point B. आपको इसका टोटल इलेक्ट्रिक करंट और टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है. यहाँ पे देखो इलेक्ट्रिक करंट 3 पार्ट्स में डिवाइड है, I1, I2 एंड I3. और टोटल इलेक्ट्रिक करंट निकलेगा I1 प्लस I2 प्लस I3. सो फर्स्टली वी शुड फाइंड I1. I1 का फॉर्मूला होगा V अपॉन R1. वोल्टेज आपका फिक्स है कितना 12. सो 12 एंड R1 है, इसको सपोज कर लो R1. दिस वन बिकम R2 एंड दिस वन बिकम R3. तो R1 हुआ आपका 5. डिवाइड करेंगे देन वी गेट 2.4 एम्पियर. इसी तरह I2 निकालो. I2 हो जाएगा अगेन V अपॉन R2. इट मीन्स 12 अपॉन R2 हमारा 10 है, सो 1.2 एम्पियर. I3 V अपॉन R3. सो 12 अपॉन R3 कितना हमारा 30. अब इसको डिवाइड करोगे देन वी विल गेट 0.4 एम्पियर. ओके, हमको निकालना है टोटल इलेक्ट्रिक करंट. ओके, टोटल इलेक्ट्रिक करंट इट मीन्स I. और I का फॉर्मूला होगा I1 प्लस I2 प्लस I3. ओके, अब वैल्यू पुट आउट कर दो सभी का. I इज इक्वल टू I1 हमारे पास कितना आया था 2.4, I2 था 1.2 एंड I3 0.4. अब तीनों को प्लस करोगे देन वी विल गेट 4 एम्पियर. दिस वन द टोटल इलेक्ट्रिक करंट. अब आपको टोटल रेजिस्टेंस निकालना है. तो देखो ये तीनों रजिस्टर सीरीज में कनेक्टेड है, सॉरी पैरेलल में कनेक्टेड है. सो वी पुट आउट द 1 अपॉन RP इज इक्वल टू 1 अपॉन R1, 1 अपॉन R2 एंड 1 अपॉन R3. नाउ पुट द वैल्यू. R1 का वैल्यू है 5, R2 आपका है 10 एंड R3 30. टेक द LCM. Your LCM is 30. 5 6 जा 30, 10 3 जा 30, 31 जा 30. 6 plus 3 9 plus 1 10. 10 upon 30. Cut out. This one 1 upon RP. So we say RP resistance are connected in parallel is equal to 3 ohm. Okay. And I think all of you understand all the topic and easily solve short question answer of this one chapter. Okay. Thank you for watching this video.